Hello and welcome to my YouTube channel Economy Classes. Dear students, our today's topic is production possibility karo. Okay. In order to explain the basic problems of an economy, the economists also make use of a curve which tells us the maximum how the economy can achieve the maximum possible output of goods and services with the use of the given with the given technology and with the availability of resources. कितने रिसोर्सेज इकोनॉमी के पास हैं और कितनी टेक्नोलॉजी इकोनॉमी के पास हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, उन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कितना प्रोडक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम हासिल प्रोड्यूस कर सकता है इकोनॉमी। इसलिए कहते हैं एन economists make use of a curve which tells us how the economy can achieve the maximum output with the given technology and with the given use of resources. That curve we say that is the production possibility curve. Economists have given the very good definition of the production possibility curve is this. Production possibility curve is a curve representing all possible combinations of maximum total output that the economy can produce with the given resources and with the given use of technology. कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकती है इकोनॉमी with the help of what? With the help of these given resources. ये जो इकोनॉमी के पास होगा, कितने रिसोर्सेज इकोनॉमी के पास होंगे, कितनी टेक्नोलॉजी होगी, कितनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, या कितने रिसोर्सेज होंगे इकोनॉमी के पास, उनको फुली यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जो रिसोर्सेज मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं इकोनॉमी with the help of these given resources and given technology. उसको हम कहते हैं production possible curve. Dear students, I will tell you, for the purpose of this simplify this example, I will tell you, we know, you and also me and every person knows, economy cannot produce only one, only two, only three, but produces number of goods and services in the economy. But आपको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूं, आपको मानना होगा economy produces only two types of goods. Economy produces only two goods. Okay, you can't consider here economy produces number of goods. Yes, economy produces number of goods, number of services, but you can consider here economy produces only two types of goods. One is civilian good and another is military good. क्यों हम यही यहाँ पर कहेंगे इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली टू टाइप्स ऑफ गुड्स, इससे आपको समझ आने में फायदा आएगा. ओके, you can consider here economy produces only two types of goods, civilian goods one type and another type military goods. इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज गिवन है, कांस्टेंट है, कितने रिसोर्स है उनके पास उन्हीं को लोग लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10,000 रुपया है, मेरे पास उतनी अथॉरिटी है कि मैं 10,000 को ये जो कोई भी मटेरियल ला सकता हूँ, कहीं पर भी खर्च कर सकता हूँ, कोई भी कंजप्शन कर सकता हूँ. लेकिन इन 10,000 के आगे मैं कहाँ जाऊँगा जब मेरे पास पैसे नहीं हैं. इसलिए आपको कंसिडर करना है इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज गिवन है, कितने हैं वो हम जानते नहीं है, रिसोर्सेज गिवन है और टेक्नोलॉजी भी गिवन है. उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करना है इकोनॉमी को, उन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज करना है इकोनॉमी को, और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन हासिल करने की वो उनको अचीव करनी है. ओके, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इकोनॉमी है आपको कंसिडर करना है इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली सिविलियन गुड्स एंड मिलिट्री गुड्स. ओके, this is the production possibility curve P1. This is the production possibility curve. That means you can consider economy produces this much amount of production of output OP and OP1. Okay,
under this production possibility curve, and beyond this economy cannot produce. Why? Because of resources are limited. Economic problem, resources are limited and wants are unlimited. यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. जब हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे फुली, इतना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं. इससे कम कर सकते हैं प्रोडक्शन. यहाँ पर आप यहाँ पर मानिए यहाँ पर क्यों है, इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं. इससे कम जितनी हमारे पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है प्रोडक्शन निकालने की, इससे कम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं. व्हाई? बिकॉज रिसोर्सेज आर गिवन. आप मान लीजिए हम इकोनॉमी प्रोड्यूस करते हैं सिविलियन गुड्स एंड मिलिट्री गुड्स. बट अगर कंट्री चाहेगी हमारी इकोनॉमी जो है हम सिविलियन गुड्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, हम सिविलियन गुड्स कोई भी सिविलियन गुड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ हम मिलिट्री गुड प्रोड्यूस करेंगे, तब हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी है ओपी, दिस मच अमाउंट ओपी. इतना प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकती है हमारी इकोनॉमी, लेकिन सिविलियन गुड्स कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर हम इस मिलिट्री गुड को छोड़ देंगे, इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली सिविलियन गुड्स, देन प्रोड्यूसेस ओनली OP1. उससे ज्यादा, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकती हैं. ओके, व्हाई? बिकॉज ये जो रिसोर्सेज हमको मिलिट्री गुड्स प्रोड्यूस करने में लगाने होते हैं, वो हमने लगाए हैं इस सिविलियन गुड में. लेकिन हम सिर्फ एक गुड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. हमारे लिए सिविलियन गुड एज वेल एज मिलिट्री गुड आर इंपॉर्टेंट. लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम इन ही रिसोर्सेज को उस तरह यूटिलाइज करना है, उस तरह मैनेज करना है, जिससे हमको ये सिविलियन गुड की वांट भी सेटिस्फाई हो जाएगी और मिलिट्री गुड वांट भी सेटिस्फाई हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हम कहेंगे इकोनॉमी प्रोड्यूसेस OM अमाउंट ऑफ सिविलियन गुड्स. हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है, हमको इन ही रिसोर्सेज को डिवाइड करना है सिविलियन गुड्स और मिलिट्री गुड्स में. हमने प्रोड्यूस किया है OM अमाउंट ऑफ सिविलियन गुड्स एंड प्रोड्यूसेस OS अमाउंट ऑफ मिलिट्री गुड्स, एंड इकोनॉमी रीचेस टू दिस पॉइंट ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर. यहाँ पर हमने टच किया है मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बोथ सिविलियन गुड्स एज वेल एज मिलिट्री गुड्स. अगर आप मानते हैं हमारी कंट्री मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ पर चलती है, तब वो ध्यान देंगे ज्यादा मिलिट्री गुड्स पर, तब वो प्रोड्यूस करेंगे OS अमाउंट ऑफ मिलिट्री गुड्स एंड स्मॉल अमाउंट OM अमाउंट ऑफ सिविलियन गुड्स. अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, मिलिट्री की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तब हम ज्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे सिविलियन गुड्स पर. OR यहाँ पर मान लीजिए इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली OR अमाउंट ऑफ सिविलियन गुड्स, एंड थोड़ा हम लगाएंगे इस मिलिट्री गुड पर OU अमाउंट ऑफ मिलिट्री गुड्स. यहां पर टच करते हैं हमारी जिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, या हम प्रोड्यूस करेंगे ON अमाउंट ऑफ सिविलियन गुड्स एंड OT अमाउंट ऑफ दिस मिलिट्री गुड. देन हमारी ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो यहाँ पर B पर टच करती हैं. दैट मीन्स हम इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं. हाँ, यहाँ पर नीचे जा सकते हैं, यहाँ पर भी नीचे जा सकते हैं यहाँ पर. देन हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो इस तरह आएगी. ओके, लेकिन हम उस वक्त क्या कहेंगे, हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हुए. जब हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे फुली, उस वक्त हम अचीव कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम दिस P1 this production possibility curve. Production possibility curve means how much amount, how the maximum amount of output or the maximum amount of production economy produces this much amount, and beyond that नहीं जा सकते हैं because of resources are given, technology is given. Okay, और ये जो military goods and civilian goods, we can divide our resources between these two types of goods. Either we produce military goods
or produce civilian goods or produce both. When we equally divide, then we go ON amount of civilian goods and OT amount of military goods, and हमारी ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो यहाँ पर टच करते हैं, that means our resources are fully utilized. Two main silent features of this production possibility curve is डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, P1. एंड अनदर फीचर इज कनकेव टू द ऑरिजिन. ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरफ है, P1. This side is concave and this side is convex. Okay, this side is convex, ऊपर वाला साइड, ये साइड नीचे वाला साइड कॉनकेव है. कॉनकेव टू द ऑरिजिन. टू फीचर्स हैं. फर्स्ट पॉइंट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, दो फीचर्स इसमें मेन आते हैं. डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग. वाई? अगर हम ज्यादा रिसोर्सेज लगाएंगे इस मिलिट्री गुड पर, तब थोड़े रिसोर्सेज रह जाएंगे जो हम इस सिविलियन गुड पर लगा सकते हैं. दैट मीन्स ज्यादा रिसोर्सेज मिलिट्री गुड पर लगाएंगे, इसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी. कम रिसोर्सेज इस पर लगा यूटिलाइज करेंगे सिविलियन गुड पर, और ये जो सिविलियन गुड्स कम ही निकाल सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन भी कम ही हो जाएगी. अगर हम इसी पर ज्यादा लगाएंगे तो इस पर ज्यादा रिसोर्स लगाएंगे सिविलियन गुड पर, मिलिट्री ये जो प्रोडक्शन वो कम हो जाएगी. वाई? बिकॉज हमने ज्यादा ये जो रिसोर्स लगाए हैं सिविलियन गुड पर, कम लगाए हैं मिलिट्री गुड पर. जिस पर ज्यादा लगाएंगे उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी. ये तो सिंपल है, जिस पर ज्यादा लगाएंगे उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी. इसलिए कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट डाउन होती जा रही है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. व्हाई? इफ वी यूटिलाइज मोर रिसोर्सेज टू दिस सिविलियन गुड, एंड थोड़े रह जाएंगे यहाँ इस मिलिट्री गुड के लिए. व्हाई? बिकॉज आवर रिसोर्स आर गिवन. हमारे पास, आप मान लीजिए हमारे पास 20 रिसोर्सेज हैं, 20 मशीन्स हैं, हमने 15 लगाए इसके लिए सिविलियन गुड के लिए, और 5 रह जाएंगे, 5 लगाएंगे यहाँ पर मिलिट्री गुड. दैट मीन्स जब हमने 15 रिसोर्सेज यहाँ पर लगाएंगे, इसकी ये जो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, दिस मच अमाउंट. यहाँ पर 5 लगाएंगे, इतना ही प्रोडक्शन रह जाएगा. या फिर अगर हम लगाना चाहते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं मिलिट्री गुड, देन हमको रिसोर्सेज यहाँ पर थोड़े उठाने हैं, वो लगाने हैं इस मिलिट्री गुड पर. देन आफ्टर दैट आवर मिलिट्री गुड्स की प्रोडक्शन ये जो इंक्रीज हो जाएगी. ओके, ये है फर्स्ट पॉइंट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑलवेज, दिस इज द मेन फीचर, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड सेकंड वन, कॉनकेव टू द ऑरिजिन. इसकी ये जो कॉनकेव है वो ऑरिजिन की तरफ है, वो नीचे की तरफ है, ऑरिजिन की तरफ है. ऑरिजिन मान लीजिए, आपको माना है ऑरिजिन है ये दिस O. कॉनकेव टू द ऑरिजिन. व्हाई? आवर रिसोर्सेज आर limited and we can use these limited resources to achieve the maximum amount of output.